Thank you, Usha, and good evening, everyone. I can see everyone's very tired, and sincere apologies to keep all of you all waiting. And once again, thank you for being very patient. I hope आपके यहाँ आते आते किसी का रास्ता किसी काली बिल्ली ने नहीं काटा होगा. Otherwise, you all might have gone back, had a bath, and come back again. But having said that, from a ZTV perspective, we take it as our responsibility to make sure that we put on shows that get people to think about certain archaic beliefs and superstitions that have been around for a while are important that we get people to think about. And most importantly, allow them to define how much they wish to believe in them and draw the lines. Kala Tika is one such concept, and we've made sure that we've dealt with it in a very, very delicate manner to ensure that by the time, every time that people experience the show and they look at the show through the innocent eyes of Kali, who you will meet today, for sure, you will sit back and start wondering where should you draw the line in believing in superstitions. Before I say anything more, I would like to call the true parents of the show, Tony and Dia, on stage, who have on Zee TV delivered beautiful shows like Banegi Apni Baat and Choti Bahu. And we are very sure that we have another history in the making with them by our side. Please come on stage. गुड इवनिंग. ये स्टेज पे ऐसे छूना सुपरस्टिशन नहीं था, फेथ है, बिलीफ है. नमस्कार. इट्स अ रियल प्लेजर टू बी हियर. More so because every time there's, as a company, DJs does a program for Zee TV, हमें बहुत बहुत खुशी होती है. वी आर वेरी ग्रेटफुल क्योंकि हमने अपना करियर Zee TV और सुभाष जी के साथ शुरू किया था, बनेगी अपनी बात से. जब लव हुआ, छोटी बहू, एक मुट्ठी आसमान. सो इट्स रियली रियली नाइस. एंड लव स्टोरीज एंड यूथफुल शोज़ और ऐसे शोज़ बनाने के बाद ऐसा लगा कि कभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है डीजेस की, टोनी और मेरी, टू डू अ लिटिल मोर एंड टू से अ लिटिल मोर. तो यहाँ आते आते एक्चुअली मेरे सर्वेंट ने नीच मारी. तो झट से टोनी ने बोला ज़रा रुक जाओ 2 मिनट, एक गिलास पानी पी लेते हैं. यहाँ तक ठीक है. अगर ये सुपरस्टिशन बहुत आगे चला जाए और ये विश्वास अंधविश्वास में बदल जाए और किसी इंसान को काला टीका बना दिया जाए नज़र उतारने के लिए, नज़र हटने के लिए, तो क्या होगा? तो हमारा शो इसी के बारे में है. हम ये दिखाएंगे, बट हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे ये गलत है और कैसे ये लड़की काली सब बदल के, सब सच प्रॉब्लम से लड़ के बाहर निकलती है. एंड देयरफॉर द शो हैज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैसेज. सो आई एम रियली थैंकफुल टू प्रदीप, द entire team of Zee TV, that we got this opportunity. I'd also like to introduce the rest of the team after this, but I think Tony should also have a few words. Hello. Yeah, I think Dia said everything, and I'd just like to thank Pradeep and the team at Zee and the big bosses. And I'd like to call on stage the characters portraying the roles and introduce themselves to you. Bhupi, Meeta. Okay, first the AV. Okay, sorry. First the AV. They're saying first the AV. Okay, first we'll see the AV, then you can watch what it is, and then we can, talk about it and meet all the actors. So please watch the AV first and orient yourselves to the screen. The wonderful cast that we have. First, I'd like to invite Bhupi, who's playing the role of Vishwaveer, the man who's oscillating between faith and superstition. Well, I have to be doing all the bad things in this show. I play the character of Vishwaveer Jha. मैं हिंदी में बोलूँ या अंग्रेजी में बोलूँ? जी? जी. तो मैं विश्ववीर झा का किरदार निभा रहा हूँ और
ये एक तरह से कुछ नेगेटिव फोर्सेस में से एक नेगेटिव फोर्स है, और इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव फोर्स है इसकी कमज़ोरी, अपनी बेटी का प्रेम। ये अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी इसलिए है क्योंकि इसको पता है कि अगर मेरी बेटी पैदा होती है तो उसके बाद सारे रास्ते खुल जाएंगे, और ये रास्ते पिछले 80 साल से बंद हैं उसके लिए, क्योंकि उसके घर में, उसके ख़ानदान में, उसके कुल में पिछले 80 साल से बेटी पैदा नहीं हुई। और ये इस बात को बहुत बड़ा श्राप मानता है, क्योंकि ये नगरी है मिथिला, जहाँ पे ये कहानी जैसा बताया, और ये मिथिला जो है सीता मैया की जन्मभूमि है, और सीता मैया की जन्मभूमि में होने के बावजूद उसके घर में बेटी नहीं होती, और जब होती है तो उसको बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी उसके संस्कार जो उसने सीखा है अपने बुज़ुर्गों से, जो पढ़ा है, वैसे बहुत रीज़नेबल है, वो सब भूल जाता है, अंधा हो जाता है, और कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेता है जिसके बारे में दिया जी ने आपको बताया, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये एक तरह से ये पॉइंट आउट भी करता है हमारे समाज में, और शायद ये हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं छुएगा। ये कहानी कहीं ना कहीं छुएगी, क्योंकि जिस तरह से यूनिवर्स, ईश्वर, भगवान, अल्लाह जो हमारे सामने परिस्थिति लेके आते हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं और हमें पता नहीं चल पाता कि हो क्या रहा है। और जब हम कोई ना कोई सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उस सहारे या तो वो ज्ञान का सहारा है, और अगर वो ज्ञान का सहारा नहीं है, वो अंधकार है, तो वो सुपरस्टिशन है, वो आपकी कमज़ोरी है। और बस इसी कमज़ोरी को वो अपना सहारा मान लेता है, और फिर एक के बाद एक गलत काम करता चला जाता है, और हमारी कहानी बनती चली जाती है। धन्यवाद। I'd like to welcome Meeta Vishisht, who's playing the role of Jethi माँ। ये आपको अपने किरदार के बारे में ज़्यादा बताएंगे। डर के रहिएगा इनसे। Tony and Dia and Pradeep, thanks. मेरी रेपुटेशन, अभी मैंने मुंह में मेंटोस डाला खाने के लिए और तुरंत इन्होंने मुझे बुला लिया, तो मेरी रेपुटेशन है थोड़ी सी स्कैरी, पता नहीं क्यों। मेरी को एक्ट्रेसेस भी डर रही थी जब उनको पता चला। माने जब हम नहीं जानते थे एक दूसरे को, तो वो ऐसे थी जैसे कि पहली बार जब बच्चे को इंजेक्शन लगता है ना, तो डॉक्टर को किस तरह देखता है वो। सो दैट्स हाउ दे वर अराउंड मी। दे फॉर्चुनेटली फाउंड दैट आई डोंट हैव मच अथॉरिटी एट ऑल, या स्पेशली नॉट विद दिया एंड टोनी अराउंड। एनीवे, आपके पास वो एक कागज़ दिया गया है जिसमें हम सबके किरदारों के बारे में लिखा हुआ है, एंड सो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप पढ़ लीजिएगा। कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए। The promo is looking lovely, by the way, really nice. We are seeing it ourselves for the first time. The stars of the show are these little kiddies, beautiful kids. I'm just very happy to be part of the team. This is the first time I'm working with DJs. ये डाल दूँ, गिरा दूँ? हाँ। देखो धीरे-धीरे यही होता है। And I'm very happy with the lovely cast we have, my co-actresses, my co-actor, and all the others. If there are any questions, please feel free to ask. Anybody wants to ask a question? Later on. Okay, thank you. On to the next. Bye. मैं एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ सबसे। मुझे एक्चुअली यहाँ पर अपने कॉस्ट्यूम में होना था, लेकिन कॉस्ट्यूम पहुँच नहीं पाया, और आप सो आई एम रियली सॉरी, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। ये कितना झूठ बोलता है ये। मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को। विश्ववीर जी की पहली पत्नी, धर्मपत्नी, सच के लिए लड़ने वाली मंजरी, played by Daljit. Namaste.
मैं हूँ मंजरी। ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं वाकई चाहती हूँ कि आप लोग पहला एपिसोड देखें और तब डिस्कवर करें। मंजरी सच की आवाज़ है और जो भी गलत होगा, जो आप फील करेंगे वो मंजरी बोलेगी। तो मैं एक्चुअली इस शो में आप सबकी आवाज़ बन के आने वाली हूँ एंड आई होप कि मैं सही तरीके से एक्टिंग कर पाऊँ कि आप लोग उस सच की आवाज़ को महसूस कर सकें दिल से। सॉरी, एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया। ये टेलीविज़न है तो सिनेमा, लेकिन थोड़े अलग ढंग से बनाया जाता है। चैनल और राइटर साथ में बनते हैं, फिर डायरेक्टर अलग से होता है, जो कि लिखा गया था राइटर्स से, क्रिएटिव से। लेकिन ये जो विजुअल ड्रीम जो है, ये वो इम्तियाज़ पंजाबी ने क्रिएट किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस समय वो शूटिंग कर रहे हैं, इसलिए आ नहीं पाए, तो थैंक यू इम्तियाज़। एक बीवी संभाली नहीं जाती, एक आदमी की दो बीवियाँ। डिस्को भौरिया उनकी दूसरी बीवी। आइए, अक्षरा इज प्लेइंग द रोल ऑफ माधुरी। Namaskar and pranam to everyone. माधुरी बहुत ही अल्हड़ और अटेंशन सीकर जिसको कहते हैं वैसी टाइप की कैरेक्टर है, पागल, थोड़ी पगली। और बाकी आई एम सो हैप्पी। ये मेरा सेकंड सीरियल है जी टीवी के साथ। पहला सीरियल किया सर्विस वाली बहू एज अ गुलकंद, बहुत पॉपुलैरिटी मिली एंड इसके लिए भी बहुत खुश हूँ कि पहली बार डीजेस प्रोडक्शन के साथ काम करने का मौका मिला एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। I'd like to call the writer, Bhavna Vyas. I know she's not the cast. And I'd like to call the creative director, Misha Gautam. And Imtiaz Punjabi should have been here, but he isn't. One minute. And last but not least, the stars of the show. जिसके सामने ये लोग कुछ भी नहीं. Kali और Gauri. Please come. We have the chairs put up. कुछ बोलेंगे. जब भी कोई सीरियल होता है, कुछ होता है, तभी मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं टीवी में आ रही हूँ और मेरा कैरेक्टर का काली है जो मैं सबकी नज़र उतारती हूँ और जब मुझे नज़र लगती है तो मेरी मम्मी मुझे नज़र उतारती है। मैं जब भी कहीं जाऊँगी, कभी कुछ करूँगी, सबसे पहले अपनी टॉयज लूँगी क्योंकि मैं जब भी खेलती हूँ बारबी के साथ मुझे लगता है कि मैं एक बारबी ही हूँ। थैंक यू। And little Gauri, उधर जा. Gauri सामने बीच में खड़ा होना. हाँ. माय कैरेक्टर इज गौरी। मुझे सब अपनी फैमिली में एक प्रिंसेस मानते हैं और मैं 80 इयर्स के बाद इस फैमिली में आई हूँ और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। As we pass the mics on for the question answer round, we'd request the sofas to be kept up, please. Sorry? Thank you. What? Yeah, we'll just give you the mics. We'll have a short Q&A session. बाबू आप दोनों इकट्ठे बैठो, जगह कम है। बाबू no, they don't want to. It's okay. Let me run through because 10 minutes let them have fun. Are you influenced by what we read in the newspapers today about anti-superstition Can we have some mics up? killing other people because of their thinking? Are you influenced by that? Yeah, actually, I'm first of all, I'm influenced by the fact that we wanted to take one step in entertainment in another direction as a company. So
you know, DJs wanted to go beyond just doing a love story or a comedy, and we've tried all genres over the years. I'm also affected by the fact that, you know, as you rightly said, you know, when you take superstition to the extreme, क्या होता है, तो हम आपको वो दिखाएंगे और हम आपको होप भी देंगे और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि वो कैसे सही हो सकता है. So we want people to be, you know, aware, alert, and to learn something apart from being entertained as well. My question to भूपिंदर जी, आपके राइट से. हाँ, आप इसमें ज्योतिष का रोल अदा कर रहे हैं. हाँ जी. बराबर. जी जी. आपके हिसाब से ज्योतिष विद्या और अंधविश्वास में कितना फर्क है, क्या फर्क है? फ़र्क इतना है कि ज्योतिष विद्या जो है वो मैथमेटिक्स है और अंधविश्वास जो है गैस वर्क है. और इस सीरियल के बाद लोगों का विश्वास अंधविश्वास से हट जाएगा और ज्योतिष विज्ञान की ओर रुचि बढ़ेगी. देखिए, ये इसको मैं पर्सपेक्टिव में लाना चाहूँगा. हमारी जन्मभूमि में, हिंदुस्तान में इतने सारे पीर पैगंबर महान आत्माएं जन्मी हैं. जब हम नहीं सुधर पाए तो एक सीरियल क्या सुधारेगा. लेकिन हाँ, ये है कि जो मेन ध्येय है एक कोशिश का, वो कोशिश ईमानदार है. और दूसरी कोशिश ये है कि एंटरटेनमेंट. तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही ड्रामेटिक और मुझे नहीं पता, कई सारे लोग बोलते हैं कि भैया वेस्ट के जो कमाल के सीरियल्स हैं, मैंने नाम सुने उनके, बड़े बहुत जोश से उन सीरियल्स के बारे में बात करते हैं. जैसे वो गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, ब्रेकिंग बैड हो गया. मैंने देखा तो हमारे सीरियल से मुझे कहीं ज़्यादा रिग्रेसिव सीरियल्स लगे वो. लेकिन क्योंकि वो अंग्रेज़ी में बन रहे हैं, शायद हॉलीवुड में बन रहे हैं, तो हम उनके बड़े मुरीद हो जाते हैं, बड़े फ़ैन हो जाते हैं. ये जो कहानी है, ये इसी धरती में जन्मी कहानी है, हमसे जुड़ी हुई कहानी है. और ये ड्रामेटिक कहानी है, मज़ेदार कहानी है. और कहानी के ऊपर मीशा जी और मैडम जो हैं ज़्यादा बोल पाएंगे. लेकिन हाँ, जो मैंने पढ़ा है, मुझे जितना अभी तक पढ़ा है, इतना मज़ा आया पढ़ के और करके, तो फिर आई फील वेरी ब्लेस्ड. बहुत धन्य अपने आप को मैं महसूस करता हूँ. डज इट आंसर सर? दिया जी से एक सवाल. नमस्कार. अंधविश्वास पूरे देश में है, शहरों में, गाँव में. बिहार को ही क्यों चुना गया? बिहार के इस मिथिला को ही क्यों चुना गया? नहीं, don't make it bright. Let it be how it was. हाँ, मैंने कहा कि इस स्टोरी में बिहार के मिथिला को ही क्यों, जी. उसको बेस क्यों बनाया गया? एक्चुअली इंटरेस्टिंगली जितना हम अंधविश्वास दिखा रहे हैं और जैसे हम बोल रहे हैं विश्ववीर का कैरेक्टर ऐसा है, बट एक्चुअली जब वो शुरू होता है, वो 80 साल से एक श्राप अपनी फैमिली का तोड़ने की कोशिश कर रहा है. जैसे वो चाहता है कि इस नगरी में, मिथिला नगरी में, जहाँ सीता मैया पैदा हुई थी, वैसे ही उनके यहाँ एक बेटी हो. तो इसलिए हमें एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कनेक्शन मिला. तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट वी सेट दिस हियर and we will get that spiritual and that context that we wanted for our story and a good base for it, which is why we set it there. मिथिला में इसकी शूटिंग भी हुई है क्या? जी, मिथिला में नहीं, बट इर्द गिर्द. मेरा सवाल प्रदीप जी से है. कुछ साल पहले जी पे आता था काल कपाल महाकाल, जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा था, और अब आप कह रहे हैं अंधविश्वास को कहें ना, तो क्या माना जाए, पहले वाला या अब वाला? देखिए, is this working? Yeah. Is this working? Yes. Okay. समय बदलता है, लोगों की सोच बदलती है. आज चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, लोगों की सोच बदली है. एक मुकाम अब आया है जहाँ लोगों को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें आईना दिखाएं और उन्हें सोचने पे मजबूर करें कि जो भी आप चीज़ों में विश्वास करते हैं, उसे आप किस हद तक लिटरली लेना चाहते हैं. और हमारा इंटेंशन वही है कि हम
वो आईना उनके सामने रखें। और वही इस शो के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि हम ऑनेस्टली करें। उसमें लाइटर कैरेक्टर्स भी हैं जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, पर हमारी कोशिश यही है और यही रहेगी कि जैसे जैसे समाज में हम देखेंगे कि कई चीज़ें हो रही हैं, हम चैनल के द्वारा आगे लाएं उनके सामने और उन्हें सोचने पे मजबूर करें। अभी आज चैनल पे रात के टाइम बैंड में हम फेयर फाइल्स भी चलाते हैं, तो आपका अगला सवाल होगा फेयर फाइल्स भी तो आप दिखाते हैं। लोगों को डरने का आभास भी अच्छा लगता है, तो हम उन्हें वो फिक्शनल स्टोरीज़ भी दिखाते हैं, पर उसका कहीं पे भी हम ये नहीं कहते हैं कि ये सब चीज़ें आप खुद करें। तो अगर आप वो शोज़ देखेंगे तो वो क्लियरली फिक्शनल सब्जेक्ट्स हैं और वो कहानियाँ हैं। जैसे आप थिएटर में जाके एक एक्सपीरियंस चाहते हो, वैसे ही वीकेंड्स पे हम एक एस्केपिस्ट एक्सपीरियंस देते हैं। सो इन अ एंटरटेनमेंट स्पेस हर सुर को हमें प्रेजेंट करना पड़ता है ऑडियंस की तरफ, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि हम उन्हें काफ़ी चीज़ों पे सोचने पे मजबूर करें। तो ये हमारा एक उसी दिशा में हमारी वो एक कोशिश है और हम इसी प्रयास में काला टीका समाज के सामने ला रहे हैं। थैंक यू। Hello, my question is to Diya ji and Tony ji. Yeah. Sorry. Okay. 90s में we have seen your बनेगी all this serials, college kind of youth serials. तो आपने अभी इस यहाँ पर I'm here. तो ये अचानक आप social kind of से इसमें गए. What is the reason of? There is no reason. We've done Banegi Apni Baat, we've done Just Mohabbat, we've done Just But See, those all we've youth done oriented. Choti Bahu, so we've done a whole genre of shows, you know, and we haven't done anything like Kala Tika. So that is why the intent is let's do something else, and which is also fresh. Also जैसे थोड़े ओल्ड होते जाओ ना तो थोड़ा सोशली अवेयर हो जाता है आदमी। तो बेसिकली यही है कि कुछ और बोला जाए, हो गया हमने बहुत कुछ। एंड डीजे ज़्यादातर हमेशा जॉनर तोड़ता है, ट्राई करते हैं कि आपने ही कहा बनेगी अपनी बात और छोटी बहू में बहुत फ़र्क था। तो यही था कि आदमी कुछ और ट्राई करे, कुछ और लिखने की कोशिश करे जहाँ डेप्थ इस किस्म का हो, जहाँ आप कुछ कह रहे हो, एंटरटेन भी कर रहे हो और लोगों को थोड़ा चौकन्ना भी कर रहे हो कि शायद जो वो कर रहे हैं कहीं गलत जा सकता है। यू नो, फेथ is one thing and superstition is the other. So yes, we want to try something new and different now. तो ये सब्जेक्ट आपका है बेसिकली विलेज, अब यू हैव टेकन बिहार, ये दिस इज आल्सो लाइक जो It's not set in a village. नो बट जो बैकग्राउंड आपका है यू कैन सी दैट इट्स ऑल विलेज एंड ऑल, ये एक्चुअली सुपरस्टिशन इन मुंबई एंड एवरीथिंग प्लेसेस, मतलब व्हाई यू शो टिपिकल विलेज काइंड ऑफ बैकग्राउंड? It's a very educated family. अगर आप देखेंगे विश्ववीर is not पिछड़ा हुआ. They have everything in their homes. It could be as aspirational a home as anywhere else. We set it there more because we found a symbolic connection with Sita Maiya and that is why we did that. But it is not because हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ villages में ऐसा होता है. मुझे तो लगता है cities में उतना ही कुछ ऐसा होता है. And I'm sure Pradeep will want to add something there. मीता जी, I think Pradeep would just like to add to it. Yeah. हाँ, ये मैं सुनील कुकरेती दैनिक भास्कर से बोल रहा हूँ। आप Sunil, हाँ टोनी दिया, मैं एक सवाल, संजीव झा हूँ दिल्ली से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पहले कहा कि ये मिथिला की कहानी है। मैं मिथिला से बिलोंग करता हूँ। जो कॉस्ट्यूम आपने पहनाए हैं ये मिथिला में कोई महिला नहीं पहनती जी। ये जो कॉस्ट्यूम और पहने लगेंगे ना सर? नहीं पहनेंगे। जो रुतबा आपने विश्ववीर झा का दिखाया है, मिथिला का एक भी पंडित उतना समृद्ध नहीं है। ऐसा तांत्रिक वहाँ ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपने एक नाटकीय कहानी रची है लोगों को बरगलाने के लिए, अंधविश्वास फैलाने के लिए, या इसके पीछे की कोई और वजह है? बस आपको अच्छा लगा कि नहीं सर? बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, कारण कि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं उस मिट्टी से पला बढ़ा हूँ, इसलिए मैं ये बड़े फंसी हैं अपने कपड़ों के बारे में। सर मैं आपकी बात
से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी गांव से ही हूँ। गांव में हम जानते हैं कि इस तरह के कॉस्ट्यूम पहन के महिलाएं, और मेरा देख लेते तो आप और भी हंस जाते। खैर, लेकिन जैसे मैंने कहा सर कि हमारा जो दूसरा ध्येय है वो है आपको एंटरटेन करना। ध्येय के लिए हम झूठी कहानी का सहारा नहीं ले सकते। मिथिला में कहीं भी बेटियों को मिट्टी के नीचे नहीं दबाया जाता। जी सर, जी। आपने एक जगह दिखाया है कि लड़की पैदा हुई उसे मिट्टी के नीचे दबाने की जो प्रथा आपने एक दिखाई है। नहीं, वो तो गरीबी के कारण उसने कुछ ऐसा भी हो, किया। मिथिला में ऐसी आज तक इतिहास ही नहीं रहा है। कल्पना के मिथिला लिए में बेटियां हमेशा सर पे रखी गई हैं, चाहे वो गरीब की हो इसीलिए या सर अमीर की वही हो। हम कह रहे हैं सर, कि मैं एक सेकंड सर। मेरे गांव में कभी किसी का खून नहीं हुआ, कभी किसी ने किसी को ओए करके नहीं बोला। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, बड़ी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, क्योंकि आपने बड़े दिल को छूने वाली बात बोली है, तो आपका जवाब भी दिल को छूने वाला ही मैं आपको दूंगा। लेकिन मेरे उसी गांव में मेरे भाई का कत्ल हो गया। नहीं सर, लेकिन ये कहना कि ऐसा हुआ नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता, ये धारणा गलत है सर। ये कहानी सर अगर हम वहां जाना चाहते हैं तो वहां का कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ना सर। एक कहानी के माध्यम से ही हम वहां तक पहुंच पाएंगे। भूपेंद्र जी, जी सर, मैं जवाब दूं जरा। हमारी कहानी वो है जहां एक इंसान एक लड़की को जमीन से निकालता है। हमारी कहानी वो नहीं है कि जमीन में गाड़ी जाती है लड़की। दैट इज नॉट द स्टोरी। बट वो कहानी नहीं, आप देखिए शो। कहानी हमारी है कि एक इंसान अपने स्वार्थ के लिए, जैसे राजा जनक को सीता मिली थी, उसी तरह इस आदमी को वो लड़की जमीन के नीचे से मिलती है, उसको निकालता है और अपने घर में रखता है और उसको अच्छा जीवन देता है। लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह से करता है, दैट इज द स्टोरी काला टीका। इट इज नॉट अबाउट कि लोग जमीन में लड़कियों को गाड़ते हैं या नहीं गाड़ते हैं, उसकी कहानी है ही नहीं है। First and foremost, let me please make one thing very clear. If it has hurt your sentiment, that was not the intention at all. कहानी जैसे क्यूरेट की गई है, उसका फोकस सिर्फ ये है, जैसे इन्होंने एग्जैक्टली क्लियरली पॉइंट आउट किया, कि हमने थ्रू एंड थ्रू स्टोरी में यही रखा है कि लोगों को एक चीज़ क्लियरली दिखाई दे कि पॉजिटिव चीज़ें करो लाइफ में, और अंधविश्वास से अपना विश्वास हटा लीजिए। फोकस वही है। मिथिला गांव हमने इसलिए पिक किया क्योंकि वो सीता मैया की जन्मभूमि है, इसलिए हमने वहाँ पर स्टोरी को सेंटर किया ताकि लड़कियों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिले, जो हमारे लिए हमारे समाज में बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। वी वांट women to get and girl children to get more importance in society. So from there is where we are coming. और वहाँ से हमने स्टोरी उठाई है। और जैसे उन्होंने एग्जैक्टली पॉइंट आउट किया कि उन्होंने दफनाया नहीं था, उन्होंने वो जान बचाई बच्ची की। और जब आप स्टोरी देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि काली की स्टोरी वो उम्मीद भरी कहानी है, और वो गौरी के लाइफ में काला टीका भले ही बन जाती है किसी के अंधविश्वास के वजह से, पर वो आगे चल के उसके लाइफ में बहुत रंग भरती है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, द इंटेंशन इज़ नॉट टू सेंटर इट इन बिहार। एक बार आप वो स्टोरी देखेंगे, वो कहीं भी जोग्राफिकली किसी भी प्रांत या किसी भी सेक्ट को बिल्कुल उंगली नहीं दिखाता है। हर इंसान, वेदर दैट पर्सन लिव्स इन द टॉप स्टोरीज इन मुंबई or in a juggi in some small village, in a small hut, will relate to this story, ताकि वो यही सोचे और यही सोचने पे मजबूर हो कि अगर वो किसी चीज़ में अंधविश्वास कर रहा है, किसी सुपरस्टिशन पे अंधविश्वास कर रहा है, और कोई चीज़ को खींच के लेके जा रहा है, किसी के लाइफ पे उसका कोई परिणाम हो रहा है, तो वो सोच के थोड़ा स्टेप पीछे लेके फिर आगे बढ़े लाइफ में। तो हमारा फोकस वही है। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी भी प्रांत को या किसी भी जोग्राफी को हम नीचा दिखाएं। हम इसी धरती से हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता किसी भी प्रांत को नीचे दिखाने में। हमारा फोकस यही है कि गर्ल चाइल्ड को एक तो इम्पोर्टेंस मिले हमारे सोसाइटी में, और जो अंधविश्वास है
जिसके वजह से आप इतनी चीज़ें देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द होते हैं, वो हम बगल में रख के आगे बढ़े और हमारे कल्चर से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हम लेके हमारे अगले पीढ़ी को दान करें और आगे चलते रहें. Good evening, Jyoti. Aarti, please give the mic to Jyoti. Okay, thank you. Diya, it is very interesting the kind of concept you have with this particular show, because on one hand it looks like it is demeaning women, demeaning girl children, because you're using her. But on the other hand, it is like empowerment of girl child. So how did you think two sides of the coin in one single concept? Because we are happy that after a long time we are seeing a serial where somebody is sad that 80 years there has been no girl child in the family. Exactly. Unlike other serials where they kill the girl child. Exactly. In fact, thank you for pointing this out, Jyoti. This is really encapsulated what the show is. I mean, much as it might look like we're doing something negative, the beauty was, and we had so many debates with Pradeep on this, and he said, you know, all of India doesn't seem to look forward to girl children like this, and we said, no, but this is the point. The point is that here is a family who's wishing for and praying for and literally doing tap for a girl child, you know. And I think Bhavna will also like to say a few words because she's helped us put this together. So, See, the most important thing is कि हमारे यहाँ वही बचपन से सुनते आ रहे हैं लड़की बोझ है, लड़की के पैदा होने से मिठाई नहीं बढ़ती, ये नहीं होता. So when we were conceiving this concept and making it, you know, like in a story format, the most important thing was कि लड़की को importance दें. हम पूरे देश की धारणा को ख़त्म करेंगे कि बेटा ठीक है, अच्छी बात है, but बेटी भी उतनी ही अच्छी बात है. So this was the emphasis and that's how the story began. लेकिन जब तक मैं आपका भी आंसर करूँगी, जब तक हम ब्लैक नहीं दिखाएंगे, हम वाइट नहीं देख सकते. So वो जो आपने पॉइंट आउट किया कि एक बच्ची के साथ गलत हुआ, लेकिन आप वो देखिए कि उसके बाद क्या हो रहा है. So that's just a storytelling device we have कि ब्लैक दिखा के वाइट दिखाते हैं, वाइट दिखा के ब्लैक दिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, वो डिसीजन हम बाद में लेंगे. So this is the basic line we thought of कि हम इसको importance देंगे. So that is the crux of this story. And Pradeep से एक सवाल है, are you targeting primarily to the rural audience, because 7 o'clock in Mumbai, not many of us can reach home by 7 and watch this serial? We are targeting, you know, the entire country. In urban areas as well, there is a significant amount of viewing that happens. In metros like Mumbai and Delhi, some of us work late hours. Like I don't reach home till 11 o'clock at night. But then we are a 24-hour network, so we repeat the shows in different time bands. And audiences catch these shows. And those people who have the ability to access things on digital can access now shows at any point in time through digital means as well. So, you know, today getting access to content is not difficult, you know, and not everybody needs to rely on linearly programmed television. So that opportunity is anywhere there. At 7 p.m., there is significant amount of viewing that happens in metros, in urban areas, as well as rural areas. So it's not that we are targeting only the rural areas. Our focus is to make sure that the show becomes a super highway, you know, for the entire country. So we're not focusing primarily rural. Thank you, Meeta Pradeep. ji. And one question to Meeta. Meeta, you have done so many films, TV serials, plays. In fact, you are now a veteran on your own as an actor. What exactly attracted you to say yes to this particular serial after having been away from the scene for a long time as well as television is concerned? Well, you kind of just put it in a nutshell, having been away from the scene for a while. And I was kind of resting on my laurels because even today people remember the earlier stuff. I think Dia was very persistent. And I like the concept, actually. From what she told me about what the character is, it seemed like something that I could sink my teeth into because I've been saying no to a lot of shows otherwise over the last few years. And committing to a daily was like, really, can I just do it? The character I play is Jethi Bhabhi, and she's the one who's actually very anti the girls. She's supposed to be representing a lot of the superstitions, you know. But what is interesting is that she's actually someone who you will see in the show is using all of the superstitions to stay in power. And that for me is very interesting because I think
today religion is really used to stay in power. And I'm happy to actually play this character because I'm going to try and stick to that whole thing. So all the superstitions she's generating that she wants to hold on to are actually, the subtext is that she wants to retain the power. She doesn't want to lose her position, It's all about power and money and status quo. And in that sense, it becomes very interesting because I think what's happening all around us today also is the fact that religion has been always used for maintaining a status quo and for keeping some people down and making sure you stay up, So that is interesting for me. So in that sense, I'll actually play the negativity with a lot of honesty as to what her real motives are, So in that sense, yes, through the character, I'm actually going to be telling people that, look, if you are going to beat the drum about religion, you're actually not talking about God or spiritualism or a higher self. You're really talking about, a very kind of negative materiality. So that's what interested me about getting back. And I think I have acting in my blood. There's no way I can open a boutique or a restaurant. If I'm not acting, I'm not feeling all there. So it's just beautiful to get up in the morning, put on my makeup, and then, of course, fight with, the director or with Diya and say, no, but why can't it be like this? That's all part of the whole thing. So I take, for me, acting has never been a job. It's something I think I was born to do. I discovered it at a time when there was no television in the country, when I was a kid at that time. So Jyoti, thanks. Yes, so I just hope that with the character that I'm playing here, and it has lots of layers, that's what makes it interesting for me, And yeah, I'm trying to get subtle, and they keep pulling me up and saying, the audience needs it more direct. And I'm like saying, so today, in fact, the director said, Meeta, you're thinking light years ahead, just, be more obvious. And I'm like saying, no, but there's this, and that. So it's good fun. I think मीता it's जी, a lot of fun. Yeah. one more question मीता here. जी, Yeah. मीता आप जी, दोनों बहुओं में से किससे ज़्यादा सपोर्ट करती हैं? I can't give you away the whole story. Actually, to tell you the truth, I have no idea. Right now, the only person I support is myself in the show. JT Babi is a character who's all about how she will stay in power. So whoever suits her, she will support. And if she feels they're not fulfilling what she wants out of the family, she will not support that person. That's like... मीता जी, जी बोलिए. आप मंच पर आप लाल देत करती हैं, इधर आप काले रंग से डील कर रही हैं, काला टीका. हाँ जी. ये रंगों की प्रतीकात्मकता को आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से देखती हैं? देखिए, इस ब्लैक एंड वाइट और नेवी ब्लू तो सिर्फ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. माने हमारा देश जो है वो तो रंगों से भरपूर है. माने आप हमारे वस्त्रों में देखिए, हमारे हैंडलूम में देखिए, हमारे कल्चर में देखिए, वी आर पीपल हु सेलिब्रेट कलर. माने रंगों के बिना अनफॉर्चुनेट ये हाल ही में हो गया क्योंकि हम बहुत वेस्ट से बहुत अफेक्टेड हो गए उनके फैशन सेंस से कि हम आजकल काली साड़ी पहन के किसी की शादी पर भी चले जाते हैं. लेकिन कुछ साल पहले, आप तो बहुत सब छोटे लगते हैं लेकिन अपनी मम्मियों से पूछना, कोई काली साड़ी पहन के किसी शुभ माने किसी विवाह में तो नहीं जाते थे. नॉट among a lot of people. You wore magentas and reds and parrot green and all that. तो हाँ, तो Lal Ded, अच्छा, I'm so happy you've seen Lal Ded. Lal Ded is white and this is black, but in between I'm very colorful. My question is for Daljit. I want to know how superstitious are you in real life? यार honestly, I think superstition एक नाम है, एक belief का. मैंने हाल ही में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से DALJEET का DALLJIET किया है. तो इसका यही आंसर है क्योंकि आप शायद एक अपने ज़िंदगी में एक ऐसे मोड़ पे पहुंचते हैं जहाँ पे तिनके का सहारा ही बहुत होता है, जहाँ जब तक किसी का नुकसान ना हो. और उस बिलीफ को आप सुपरस्टिशन बोल लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट DALLJIET की वजह से मिला है, तो अब वो मेरा मानना है. तो आई थिंक सब जो यहाँ बैठे हैं, सबका कुछ ना कुछ बिलीफ होगा
अब वो सुपरस्टिशन है या बिलीफ है, अब वो डिबेटेबल है. मेरा सवाल दिया जी से. हाँ, इंदर जी. नमस्कार. आपकी जो ये सीरियल है बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इन दिनों बिहार में चुनाव चल रहे हैं और हम कई नेताओं को तांत्रिक के पास जाते हुए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हुए देख रहे हैं. तो आगे क्या आप ऐसा कैरेक्टर इसमें पेश करेंगी? है यू नो अगर एक एस्ट्रोलॉजर यू नो प्रोटैगनिस्ट है तो ऐसे ही कैरेक्टर आते हैं जो ये सहारा लेते हैं, इनके पास ही आते हैं पत्रियाँ पढ़ाने. इनको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है बिकॉज ये सही करना चाह रहे हैं, बहुत सही करना चाह रहे हैं, ये नहीं गलत करना चाह रहे, बट कहीं कहीं मजबूर हो जाते हैं क्योंकि लोगों की डेस्परेशन इतनी बढ़ जाती है. एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस वेदर इट्स इन पॉलिटिक्स और इन आवर लाइन और एनी लाइन. You get a little desperate, you know, you want success, you can't wait, you stop relying on and having faith in yourself. And that is the essence of the show. Believe in yourself, everything else will fall into place. And that is what Kali is all about. जो अपने ऊपर इतना विश्वास करती है, जिसको मंजरी ने इतना सिखाया है, काला पहन के भी सारे रंग तुम्हारे में बस सकते हैं. Thank you. I think when we announced the show, we knew we'd have a lot of questions. I hope most of them have been answered. It's one of the best press conferences I've attended. Can I request the cast, Diya, Tony, and the creative team? You have a question? Yes. Sir? Sorry. Please. Last question. Hello, good evening, the cast. Of what I have heard, I can literally feel that all of you are very well educated, have a background which makes you feel of what you do in toto, means ke absolutely, like the lady here. Everybody, I think I'm not a very TV addict or whatever, a little time I get, but I'm sure I'm going to see something because I feel that whatever you have said, all of you have said it with a heart, and that was very positive. And I think that is all I can say. Thank you so much. Thank you, sir. Can we have the photographers? Can we request everybody to please come in front for a photo op?